ऑनरेबल डायरेक्टर IUCT प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी और हमारे अच्छे मित्र प्रोफेसर भारतेंदु कुमार सिंह जी जो आजकल निदेशक हैं IIIT जबलपुर। दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बीज रोपण कर दिया है। प्रोफेसर सिंह हैज गिवन अ detailed account what our national education policy envisages in terms of STEM education and how this STEM education is going to be realized in coming days. Professor Singh, Professor Bhartendu ji has given a detailed account how this concept developed over a period of time and different countries reacted to the requirement. But now the time has come that we have to think in a different manner. Reason being the industrial revolutions, which are the disruptions which come into our daily life. So earlier the revolutions took a lot of time to get established and give the benefit to the society. But now the disruptions are a little short-lived. So if we say that we are at the brink of fourth industrial revolution, which is cyber physical space, cyber physical system, so it may not last many years. And processing gave an account of how this big data, artificial intelligence, machine learning, they are going to dominate. We need to develop ourselves. So when we say that what is the competence, so competence is conceptualized as a developmental capacity rather than as a set of fixed skills. आइंस्टाइन ने भी कहा था ना कि आप केवल फैक्ट्स को इकट्ठा कर लीजिए, उतना ही पर्याप्त नहीं है एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, बल्कि आप कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं जिससे आप सोचने की प्रवृत्ति को विकसित कर सकें। तो ये जो CPDP है, जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और अभी प्रोफेसर भारतेंदु जी बता रहे थे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और आयुष उस कार्य को करने के लिए उसी दिशा में ये जो कॉम्पिटेंस है उसको और अगर थोड़ा सा हम लोग व्यापक तौर से देखें तो ये जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है टू इंटरएक्टिवली मोबिलाइज एंड एथिकली यूज नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स and technology to engage and act effectively across 21st century contexts to attain individual, collective and global good. This is what we can think of developing ourselves. तो हमारे लिए भी एक अपना खुद का individual development plan होना चाहिए if we are in this STEM education. As a teacher or the students who are in the STEM education, they need to be developed accordingly. So it should not be confined and developed within the traditional boundaries of discrete bodies of knowledge. अगर हम कहें अपने फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स की कॉम्पिटेंस हो या कंप्यूटिंग की कॉम्पिटेंस हो या मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस है, वो अपने बाउंड्री के अंदर ही निहित रह जाए, ये ठीक नहीं है, और स्टेम इसको ब्रॉडर करने का प्रयास करता है. So when we call again the requirements of the STEM competence, so दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो हो गया नो व्हाट, नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज associated with your discipline. If suppose I have been trained in physics, तो उसमें जो नॉलेज है, जो जिस प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हमारे उसके साथ जुड़ा हुआ जो टूल है, वो हमको जानना चाहिए. लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात है नो हाउ. अब नो हाउ की जब बात करते हैं तो द स्किल्स टू अप्लाई दैट नॉलेज, again taking into account the ethical values and values in order to act appropriately and effectively in a given context. When I say in a given context, so you might have also heard about vocal for local. So in a given context, what is important is not to view these components as isolated or standalone, but we have to look at those components as a connected, contextualized and in a holistic manner. So Bhartendu Singh ji also referred about this multidisciplinary education, and that is what is the need of hour.
So when we talk about our uh, core competencies, what are the work context, how the students need to interact and explore the different elements of technology, the skills which are required to solve the problem. And that problem is not hypothetical. The problems are now to be solved, which are real problems. Then what are the appropriate values that need to be put in order to act to solve the problems, and also the capacity to make decisions is also the pillars of this STEM education, where we are going to get all the requirements. So these are the various components that comprises the STEM competence. And again, I am highlighting that these need to be integrated into students' learning processes. So we talk about outcome-based learning education. We talk about departure from the teacher-centric to student-centric education. So in that process, these are the key inputs which need to be integrated in such a manner. और डायरेक्टर साहब ने, पीएन सिंह जी ने बताया कि ये रुचिकर होना चाहिए. बच्चों को केवल ये नहीं कि आपने सब कुछ करा दिया, उनका इंटरेस्ट ही नहीं जागृत हुआ. तो उनको ऐसे करना चाहिए जिससे कि दे स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू एंगेज विद द इशू इन एड्रेसिंग दीज सोसाइटल चेंजेस. तो कभी कभी क्या होता है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास से गुजर रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाराणसी इज हैविंग द होली रिवर, और अगर रिवर की प्रॉब्लम देखें, वाटर बॉडीज की प्रॉब्लम देखें, तो पूरे देश भर में वाटर बॉडीज सबसे अधिक एक तरह से स्ट्रेस में है. इस प्रॉब्लम का सलूशन किसी एक विधा में सन्निहित नहीं है, और उन्होंने उसका भी संदर्भ दिया कि कैसे स्टेम को स्टीम कर दें. स्टेम में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और एक एम हम और जोड़ देते हैं मेडिसिन. इसी के साथ में अगर ए भी जोड़ दीजिए, STEAM, स्टीम, उसमें आर्ट्स भी आ जाता है. तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे इम्बाइब करें और कैसे हम इन कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करें थ्रू दीज प्रोग्राम्स, CPDP, and that is going to be the key feature of this IUCT, जो केवल अभी तक सीमित नहीं, स्टेम तक नहीं, बल्कि सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन, उन सबको आपस में इस प्रकार से मैश करके रखें जिससे कि एक दूसरे की बात को लोग समझ सकें. और जो बच्चा हमारा एंट्री करता है एट लोअर लेवल प्राइमरीज में, वो ऊपर तक जाए तो उसको कहीं पर ऐसा ना लगे कि कहीं संज्ञानात्मक उसको कोई चैलेंज है, कहीं कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, बिकॉज समथिंग विच इज कमिंग वेरी न्यू, विच वाज नॉट टॉट अर्लियर. So that is what is expected from these kind of workshops. So I will try to summarize some of the things which are part of STEM competences, and I'll again come to you when I'm scheduled for my talk. So there I will be talking how this is rooted in our Indian system, and also how we are going to move in this direction. But STEM knowledge includes epistemological knowledge, प्रोसीजरल नॉलेज, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है. टेक्निकल नॉलेज एसोसिएटेड विद ईच कंट्रीब्यूटरी स्टेम, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कहीं हमारा डोमिनेंस हो तो फिजिक्स है. जो स्टेम के सभी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो भी नॉलेजेस हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोसीजरल हो, चाहे वो एपिस्टेमोलॉजिकल हो, and how associated ideas, concepts, principles and theories they overlap and interrelate. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अभी तक क्या था कि सब कंपार्टमेंटलाइज्ड एजुकेशन में हम सोचने को विवश होते थे कि अपनी ही दिशा में वर्टिकली सोचें. दूसरी जो विधाएं हैं, उन विधाओं में जो उनके प्रोसीजरल नॉलेजेस थे, जो उनके टेक्निकल नॉलेज थी, उसको कैसे हम एसोसिएट करके और आपस में जो ओवरलैप्स हैं, उन ओवरलैप्स को समझ करके उनको कैसे इंटर रिलेट करें, ये हमारे सामने स्टेम फैकल्टी के समक्ष के तौर पर हम अगर लेंगे तो ये ठीक बात भी नहीं है, लेकिन हम इसके लिए तत्पर रहें तो मुझे लगता है कि स्टेम
फैकल्टी दे विल बिकम इफेक्टिव। अब जो प्रोसीजरल नॉलेजेस हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, कुछ सिखाया जाता है, डेटा लेना, प्रिसिशन क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, क्या वो रिप्रोड्यूसिबल है क्या, है ना। ये सभी चीजें हम लोग अपने प्रोसीजरल नॉलेज का पार्ट डेवलप करते हैं, और ये एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव टूल के तौर पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं, जो कभी कभी आउटसाइड द क्लासरूम भी होता है। जो एक तो होता है क्लासरूम की टीचिंग, और एक होता है क्लासरूम के बाहर। हमने क्लास में कुछ पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, तो अपने विद्यार्थियों के साथ मिल करके उन चीज, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के सवाल जवाब पूछते हैं कि वो जो सर पढ़ा रहे थे वो क्या था। तो वो तभी हो सकेगा जबकि हम एक दूसरे की बात को समझ सके, इंटर रिलेट कर सके। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रोसीजरल, टेक्निकल, एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज के साथ आगे बढ़े, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि रियल नेचर की है, तो इसके लिए आपके पास बिग आइडियाज होने चाहिए। बिग आइडियाज जो है, दैट फॉर्म्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी फील्ड ऑफ स्टडी। जो हमारे एंशियंट टाइम में, जिनको कि हम अपने फिलोसफिकल थॉट्स, उन दिनों भी एक बड़ी चिंता थी कि शून्य क्या है, अनंत क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। और उसके बाद भी अवचेतन मन की बात, चेतना की बात, कॉन्शियसनेस की बात, जबकि हमारे पास वो टूल्स नहीं थे उन दिनों, हजारों साल पहले। फिर भी ये आइडियाज लोगों के मन में आते थे, ये आपको कौंधते थे आपके मन में, और उसके बारे में जैसा भी आपका टूल्स होता था उसके अनुसार आप अपने को कोशिश करते थे समझाने की। और कभी एनालॉजी लेते थे, जैसे हमने सौर मंडल के बारे में सीख लिया, तो सौर मंडल के बारे में सीख लिया, तो अब हम इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण जो है किसी शून्य की तरफ जाए, कोशिश करते हैं कि कैसे इसको आपस में इंटर रिलेट करें। सो टीचर्स, दोज हु आर इन स्टेम, they need to continually connect and relate learning content of big ideas, reinforcing इनको ऐसे reinforce करें अपने क्लासरूम में, जिससे कि लर्निंग जो है वो कोहेरेंट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम हवाई कोई ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। जब भी हम उसको अपने दैनिक जीवन के साथ में कनेक्ट करें, उसको मीनिंगफुल बनाएं, इम्पैक्टफुल बनाएं, तो वो रुचिकर हो जाता है। तो वही फिर से बात जो आखिरी में संदर्भित किया आपने कि रुचिकर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब हमने नाभिक खोजा, तो अल्फा पार्टिकल का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्लास में कर पाना, दिखा पाना, उन दिनों या अभी भी क्लास में संभव नहीं है कि हम दिखा सकें कि किस प्रकार अल्फा पार्टिकल का हम बौछार कराते हैं स्वर्ण पन्नी पर, गोल्ड फॉइल पर, और उसके बाद उससे कंक्लूड करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह संकेंद्रित है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। इसी का अगर हम मैकेनिकल एनालॉजी लें कि सोने के पन्नी की जगह पर अगर आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, और जितनी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी को पर बौछार कर रहा था, अगर उसकी मैकेनिकल एनालॉजी हम बनाएं, तो आपको हैरत होगी कि जो बुलेट, जो गोली आप लेंगे बंदूक में, वो बंदूक वाली छोटी वाली गोली नहीं होगी, बल्कि बाकायदे 1 फीट की गोली होगी। और अब यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी वो क्या होगी कि एक टिश्यू पेपर पर आप इतनी बड़ी गोली से बौछार करें और वो गोली वापस जाकर के लौट आए, आप ही को हिट कर दे। तब आप सोचने को मजबूर होंगे कि कहीं जरूर कुछ ना कुछ था उस टिश्यू पेपर में। टिश्यू पेपर का मतलब गोल्ड फॉइल में, हमने यहाँ मैकेनिकल एनालॉजी ली थी कि वो वापस उसने दौड़ा दिया, कोई फोर्स लगा होगा, किसी ने वापस धकेल दिया आपको। तो मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बिग आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि इसको कैसे इंटर रिलेट करें, कैसे उन कनेक्शंस को डेवलप करें, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी मजबूत हो। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, लर्निंग वेब्स हैं, और खास करके जब से कोविड हुआ तब से बच्चे बैठ करके ऑनलाइन में ही, और ये भी ऑनलाइन का मॉडल था। मुझे एक्यूज किया जाता था कि जब HRDCs बंद पड़ गए थे, तो उस समय हमारी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा, जो रिफ्रेशर कोर्सेज और उसको प्रारंभ करें। तो अभी भी HRDCs वाले कहते हैं बहुत आसान हो गए, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि उसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में कठिनाई आई, और विशेष करके जो कार्यक्रम तो
मेरा जो हम आपकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड बहुत अच्छा है क्योंकि घर बैठ करके हम तमाम लोगों को सुन सकते हैं। और देख रहे थे सूची, उसमें चित्रलेखा सिंह जी भी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में जो फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च की एक लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। लेकिन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर हमने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया या हमने अपना वीडियो ऑफ कर दिया और हम दूसरा कार्य करने लगे तो फिर यहाँ पर इस शिक्षा, इस पद्धति में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो whenever we are here, so we have to understand the pros and cons of the medium which is being followed. और विशेष करके जब बच्चे सीखते हैं ना, तो कोई किसी कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं जानना चाहते। वो हमेशा चीज जानेंगे और उसके साथ उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक उस क्रॉस कनेक्शंस को वो नहीं समझेंगे, जब तक क्रॉस कटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने एक्सपीरियंसेस से वो कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी समझने के लिए हमेशा उसके लिए बनी रहेगी। अब तीसरा महत्वपूर्ण आइडिया क्या है बिग आइडिया के बाद, कि हमारे पास स्टेम स्किल्स भी हैं। स्टेम स्किल्स क्या है? जो स्किल्स केवल और केवल स्टेम के लिए, वो क्या है? पहली बात, हमने आपको कॉग्निटिव कई बार नाम लिया, तो जो स्टेम रिलेटेड टास्क्स हैं, दे इंक्लूड कॉग्निटिव, मैनिपुलेटिव, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, और ये जो अभी हम जिसका संदर्भ ले रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलैबोरेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने आपका ध्यान मीडियम की तरफ कहा, ऑनलाइन की तरफ कहा, लेकिन साथ ही साथ यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। अब जैसे प्रोफेसर भारतेंदु जी इज वर्किंग विद सर्न, तो वहां पर जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है, दुनिया भर के लोग जुड़ करके डेटा को एनालाइज करके और उससे अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उस वर्चुअल वर्ल्ड का भी फायदा आप उठा सकते हैं। आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग का मतलब ढेर सारे लोग जुड़ करके कोलैबोरेटिव के मोड के थ्रू यू कैन communicate, you can acquire skills, and you can also solve the problems. So that is another kind of skill which are very much required, collaboration and communication skills. So all learners need to be engaged. So I was talking about the importance of continuous learning. Continuous learning में हमने एक उदाहरण लिया राधा कृष्णन जी का। उन्होंने भी कहा था कि आई नो, जैसे ही आपने कहा, आपकी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। कभी कोई किसी चीज का एंड नहीं है, और लर्नर्स को हमेशा दे नीड टू बी एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस एनहांसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसीज अबाउट विच द प्रोग्राम टॉक्स अबाउट अ लॉट। सो कॉग्निटिव स्किल्स, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से हम लोग आते हैं। हमारा थिंकिंग प्रोसेस अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हम चीजों को अलग प्रकार से कोरिलेट करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, और कभी कभी उसमें कठिनाइयां भी आती हैं। उसमें देयर आर सम इश्यूज आल्सो। सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग में जो हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं, लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज आर लिमिटेड ओनली टू व्हाट? टू रिमेंबरिंग, to understand and to apply. Higher level of competencies में आपके पास क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग भारत की जड़ों में जाइए तो पहले कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको उत्तर नहीं बताता, उसके दिमाग में ही कैलकुलेशंस होते थे, और वो पहाड़ा भी अगर आप याद करिए तो वो सवैया ढैया सारे प्रकार के उनको सभी मल्टीप्लिकेशन टेबल से याद हुआ करते थे। तो हॉलमार्क ऑफ स्टेम इज व्हाट? इट्स uncompromising reliance on scientific methodology and evidence to assess the validity of any argument. Whatever idea you float, whatever you finding you have, we have to check it. You have to review it. You have to analyze it. You have to again question it whether it is correct or not. The important part is information processing. तो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस, बिग डेटा की बात हम करते हैं,
or it is not only limited to statistics department, it also comprises a good amount of deal with the data analytics when we are talking about STEM faculty. ये 21st सेंचुरी की आवश्यकता है जब हम आपको में ध्यान करें कि ये अनिवार्य है कि स्टूडेंट्स नीड टू बी एबल टू मेक a decision not just based on what they think or feel, but on the scientific data that supports the best solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंजीनियरिंग थिंकिंग. अब इंजीनियरिंग थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि इंजीनियर्स हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितना छोटे हिस्सों में सिंपलेस्ट तोड़ करके और उसको सॉल्व करना. सो द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, breaking down in those complex problems into small parts or components, analyze the data, develop solution, evaluate options, and if you get success, implement the solutions. So that is what, and here comes the role of engineers in STEM. So engineers, they use problem solving routinely because their job is what? They devise models, they devise some kind of systems to understand problem. Sometimes the modeling is done for solving the problem which cannot be done otherwise in a real mode, but you can always have a computer model of that. So all these things, the way engineers think and act, the way they get involved into system thinking, the way they solve the problem, the way they adapt, create, and sometimes problems are also created and they are solved and they visualize and they improve, keep on improving those methods. So this comes from, and this is again, it should not be limited to engineering discipline. It should also percolate to all the other pillars of STEM faculty members. Scientific investigation is very important. Computational thinking and ICT is going to revolutionize. And आप जानते हैं कि अब आज के समय में जैसे हम आपके साथ बैठे हैं ICT का उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम जो सोशल अनरेस्ट कहीं होने वाला है उसकी मॉडलिंग कर सकें. ह्यूमन बिहेवियर को इतना अच्छे समझने लगे हम लोग कि उसका भी एक कंप्यूटर मॉडल बना दें, उसको भी इक्वेशंस में लिख लें. तो ये सारी चीजें हमारे स्टेम का पार्ट बनेंगी और ये हम आपको दिखाएंगे कैसे इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और ये प्रगति आगे की तरफ कैसे जा रही है. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, दीज आर द higher orders of competencies which need to be inculcated. Technological skills, I have already given some idea about collaboration and communication skills. So this is what we need to inculcate. Effectively collaborative and communication skills, they do not actually, we cannot say that they come naturally, we have to learn also. तो जैसे प्रोफेसर भारतेंदु सिंह जी भी बता रहे थे कि जब हम लोग सिस्टम में आए तो उस समय ऐसा नहीं लगा कि पहले पेडागॉजी सीखें, कैसे पढ़ाया जाता है. आपने अच्छा अंक प्राप्त किया, आपने रिसर्च किया और आपको लगा दिया गया शिक्षक के तौर पर. अब शिक्षक के तौर पर लगा दिया गया तो आपको तो पता ही नहीं है कि क्लास में जो लोग बैठे उनका एबिलिटी स्पेक्ट्रम कितना वाइड है. कुछ बच्चे बहुत तेज हैं, दे आर ब्रिलियंट, और कुछ ऐसे हैं जो कि तेज हैं लेकिन दूसरे सेंस में दे आर नॉट पिकिंग द वे यू आर ट्राइंग टू डिलीवर योर टॉक. सो एंड व्हाट वी डू, क्लास में जाकर के जो बीच का सेगमेंट है, हमारे पास फिल्टर्स हम लोग पढ़ते थे, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड, तो बीच का जो बैंडविड्थ है उसको हम लोग टारगेट करके पढ़ा के निकल गए. पता नहीं, प्रोसेसिंग भी कह रहे थे डायरेक्टर साहब की खाली जान लेना, ज्ञान का भंडार होना ही पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो उन्होंने 3 श्रेणियां 4 श्रेणियां बताई कि आप क्या बनना चाहते हैं. वो तभी हो सकेगा जबकि हम लोग ये समझ लें कि जो स्टेम मेंबर्स हैं उनका सबका कॉमन गोल ये हो कि रीजंस टू वर्क टुगेदर एंड टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव शेयर्ड गोल्स एंड इम्पैक्ट. ये एक दिन में नहीं होता. अकेले हम अब एक दूसरे की विदा नहीं सीख सकते. जब साथ मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो सीखने का प्रयास करेंगे और उनको, उनके एक्सपीरियंस को अपने पास लाने का प्रयास करेंगे. So being able to work independently is good habit. आप अकेले काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन conveying the information to other team members or working with the team in a very clear manner, in a very effective manner, these are the fundamental skills that
need to be developed among all the people who are in STEM. They should keep away from the splendid isolation जो अभी तक था कि हम लोग अपने कमरों में बंद पड़े अपनी बात सोचते थे, के बजाय STEM एजुकेशन में हमको सबके साथ, सबकी भाषा, सबका एक दूसरे के साथ जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनको समझ करके और उनको कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, उनको अपने तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सारे स्किल्स मुझे लगता है कि CPDP के द्वारा आप सभी तक प्राप्त होगा। और कठिनाई वही है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं होता हमारे पास। और वास्तविक समस्याओं का समाधान किसी एक विधा तक सीमित नहीं है. That lies at the interface of many disciplines, and because of that, this kind of interaction, this kind of multidisciplinarity is the dire need of this hour. With these words, I would like to stop here क्योंकि बीके सिंह साहब को जाना है अभी मीटिंग में और अभी हम लोग दोबारा जुड़ेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए और आप सबके साथ जुड़ने के लिए. सभी प्रतिभागियों का भी उन्होंने बहुत पेशेंटली बात सुनी.